नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। टीआरएस हुकूमत के 5.5 साल दौरे हुकूमत के दौरान नाकामियों पर कांग्रेस ने परगी में एक जलसे-आम मुनक्किद किया। इस जलसे-आम में अवाम को बताया गया कि किस तरह टीआरएस ने अवाम को धोखा दिया। हुकूमत ने 5 साल के दौरान एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इस जलसे को सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और साबिक MP विशेश्वर रेड्डी और दूसरों ने भी मुखातिब किया। సాగునీరు విషయంలో అన్యాయం జరిగే ప్రమాదం అనే విషయం స్పష్టంగా మనం చెప్తున్నా మీకు రావాల్సిన ప్రాణిక సేవలని లెక్కొట్టిండు ఇప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ లో ఇది చివరి పాయింట్ ఇక్కడికి నీళ్లు వస్తాయో లేదో ఎప్పుడు వస్తాయో స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించలేదు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ప్రకటించినట్టుగా ఈ రోజు నుంచే కౌంట్ డౌన్ మొదలైతది మీ ప్రాంతానికి సంవత్సరం లోపు ఈ ప్రభుత్వం నీళ్లు తీసుకురాకుంటే చాలా మంది మిత్రులు చెప్పినట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టిఆర్ఎస్ గోరి కడుతుందని చెప్పి మనం చెప్తున్నాను. 2-3 ఇతర విషయాలు మిత్రులారా, తెలంగాణ రైతాంగానికి కేసీఆర్ పరిపాలనలో అన్యాయం జరుగుతుంది. ప్రకటించిన రైతు బంధు పథకం జూన్ లో పైసలు ఇవ్వాలి, సెప్టెంబర్ వస్తుంది, ఇప్పటి వరకు రైతు బంధు పథకం ఇవ్వలేదు. అధికారంలో వచ్చిన 8 నెలల తర్వాత కూడా రైతు రుణమాఫీ చేయలేదు. యువతకి నిరుద్యోగ వృత్తి మొదలు పెట్టలేదు. 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు సంగతి దేవుడెరుగు. అన్ని విధాలుగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 2014లో 2018లో తెలంగాణ ప్రజానికానికి ఇచ్చిన హామీలు మోసం చేసిన విషయం మనం ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలని చెప్పి పనిచేస్తాం. అదేవిధంగా విలేకరుల మిత్రులు మీ ద్వారా యావత్ తెలంగాణ ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నాం. నిన్న రామ్ మాధవ్ స్టేట్మెంట్ తెలంగాణ ప్రజలని కాంగ్రెస్ పార్టీని అవమానపరిచే విధంగా ఉంది. నిజాం పరిపాలన వ్యతిరేకంగా పోరాడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని తెలంగాణ పౌరులందరికీ తెలుసు. रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी T सुंदरराजन के तकर्रुर का खैर मकदम किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाए जाने पर मुबारकबाद दी और बताया कि बीजेपी पार्टी कायदीन का एतराफ़ करती है और जब भी मौका मिलता है उन्हें ओहदों से नवाजती है। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय ने गुज़श्ता लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि एक पार्टी के वफादार सिपाही की तरह बीजेपी क़यादत के फैसले को कबूल करते हुए किशन रेड्डी की तायीद की थी। కొత్త గవర్నర్లుగా నియమించడము భారతీయ జనతా పార్టీ నేను స్వాగతిస్తా ఉన్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు బండారు దత్తాత్రేయ గారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమించడాన్ని స్వాగతిస్తా ఉన్నాము. రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. వారు అనేక దశాబ్దాలుగా పార్టీకి ప్రజలకు సేవ చేస్తూ వారు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి కేంద్రంలో మంత్రిగా, పార్లమెంట్ సభ్యునిగా 4 పర్యాయాలు అణగారిన ప్రజల సమస్యల మీద నిరంతరం అలుపులేని పోరాటం చేసిన వ్యక్తి. బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సామాజిక వర్గం నుంచి, ఒక బీసీ సామాజిక వర్గం నుంచి ఇవాళ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమించబడడం శుభ పరిణామంగా నేను తెలియజేస్తూ, అదే రకంగా తెలంగాణలో కూడా గవర్నర్ మార్పు శ్రీమతి తమిళసాయి తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా వారు కొనసాగుతూ ప్రజా సమస్యల మీద వారు అనునిత్యం పోరాటం చేస్తూ తమిళనాడులో బీజేపీ బలోపేతానికి ఎనలేని కృషి చేసిన మహిళ. వారు పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా
కొనసాగి ప్రస్తుతం వారు తెలంగాణకు గవర్నర్గా నియమించడాన్ని కూడా మేము స్వాగతిస్తూ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షునిగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తిగా గవర్నర్ వ్యవస్థ పట్ల రాజ్యాంగ పట్ల మరి అధ్యయనం చేసి అవగాహన వ్యక్తిగా రావడం శుభపరిణామంగా ఈ సందర్భంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में सालार मिल्लत टेलरिंग सेंटर का अफ्ताह किया। उन्होंने बताया कि सेंटर से मकामी और अतराफ अकनाफ की खवातीन इस्तेफादा कर सकती हैं, जिन्हें सिलाई का सामान फराहम करते हुए तरबियत दी जाएगी। नारायणनगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिस से कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मंगल या जाशिम को बल्दिया के आगे आते एक्सप्रेशन कर लेते हैं। अगर आपको बल्दिया वाले हो क्या बोले तो फीस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी सिखाने वाले मास्टर एक दो जनों को बल्दिया वाले तनख्वाह दे देते हैं। अगर उन्होंने नहीं ऐसा बोले तो जब आपकी मैडम बोलते हैं आपको क्या करना है, आप लोग आओ तो सही सुबह में 10 बजे। टीआरएस बल्दी डिवीजन गोशामैल के सदर की हैसियत से के शैलेश कुमार का इंतखाब अमल में आया है। कॉर्पोरेटर मुकेश सिंह की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में आज चुनाव हुए। असम्बली हल्के गोशामैल के इंचार्ज और साबिक रुकन असम्बली प्रेम सिंह राठौर और रुकन शादी की मुहिम के इंचार्ज वेंकटेश गौड़ मुबस्सिर की हैसियत से शरीक थे। मोहनलाल पटेल सिंह, मोहम्मद अखिल और दूसरों ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। है हमारे प्रेम सिंह राठौड़ जी इंचार्ज और हमारे मेंबरशिप और बूथ कमेटी इंचार्ज हमारे जिन्नाराम वेंकटेश अन्ना और यहाँ सभी ने मिलकर गोशामैल डिवीज़न में जो भी बूथ कमेटियों के लिए और डिवीज़न कमेटियों के लिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो पहले हम जो मेंबरशिप बनाए और हमारी महिलाओं ने, हमारे जेंट्स, हमारे यूथ जितने भी है बड़े छोटे सभी ने मिलकर जो मेंबरशिप को सक्सेस करे, उसके ऊपर से ये जो आज कमेटियाँ डाली गई है। और हमारे जैसे कि मेन बॉडी कमेटी है, यूथ कमेटी है, हमारी यहाँ पर महिला कमेटी है, माइनॉरिटी कमेटी है और स्पोर्ट्स एंड कल्चर कमेटी है, ट्रेड सेल है और ऐसे कमेटियाँ डाल के हम हमारी ताकत को हमको मजबूत करके जो आ रहे तो टाइम पे जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है और जीएचएमसी या म्यूनसिपल इलेक्शन या एमएलए इलेक्शन होंगे आ रहे तो टाइम पे हम उसमें जो ऑपोजिशन जो भी पार्टी रहेंगी हमारी तो ताकत हम बताएंगे। और यहाँ गोशामैल डिवीज़न के कारपोरेटर्स और जो गोशामैल डिवीज़न और जितने भी जो 6 डिवीज़न लगते हैं हमारे को गोशामैल असेंबली को, हम उसमें जीत करके हम वो जवाब देंगे। और मैं यही चाहूँगा केसीआर साहब से जो जितने स्कीम यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में लाए हैं, कोई अपने हिंदुस्तान में कोई स्टेट में इतने स्कीम नहीं है और ऐसी स्कीमों को हम आगे लाके पब्लिक को हम जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स पहुँचा रहे हैं। और इतना कहते हुए पुलिस फलकनुमा ने जहानुमा के एक 32 साल नौजवान शेख रफीक को फोन का सरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि रफीक ने इंजन बौली के पास एक लारी ड्राइवर राजकुमार के पास से सैमसंग फोन और रकम चुरा ली थी, जबकि वह लारी में महुए ख्वाब था। पुलिस ने लारी ड्राइवर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। रवि कुमार इन DCM ड्राइवर है, मिरियालगुड़ा से राइस लेके आते या राइस मिल में डालते हैं। अपना आंध्रा बैंक ने और राइस मिल क्लोज था, उन्होंने वेटिंग करते ऐसे ही साइड को रख लेके सो रहे थे और हवा नहीं आ रहे बोल के ग्लासेस नीचे करके सो रहे थे। एक अननोन बच्चा उधर से जाते जाते DCM में सेलफोन देख के खींच लेके पर्स के साथ भाग गया है। उन्होंने इमीडिएटली उन लोग 6 बजे आके हमारे कंप्लेंट दिए रात में। तो हम लोग CCTV फुटेज चेक करे, वो वाइन शॉप का ने प्लस पेट्रोल बंक का ने अपना पुलिस कैमरास भी है। वो पुलिस कैमरा में उसका गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई हुआ, स्कूटी में भागे बोल के। वो नंबर को पकड़ लेके हमारे क्राइम स्टाफ गाड़ी को उसको पकड़ के लाए थे। उसके नाम शेख रफ़ीक है, एज 19 ईयर्स, इन्हों जानुमा में रहते हैं। इसको इंट्रागेशन करे तो मान लिए। इमीडिएटली हम सेलफोन रिकवरी करें, उसका पर्स भी रिकवरी करें। बाकी 4 सेलफोन भी चोरी करे सो है। हम लोग वो भी 5 सेलफोन रिकवरी करके उसको जुडिशियल रिमांड को भेजे हैं। पुराने कुछ केसेस है सर? वही 4 केसेस भी निकला है पुराना। ये मोबाइल्स का चोरी करते, घर के पास कोई चार्जिंग रखते, कार में कोई चार्जिंग रखते, देख के टाइम देख के उन्हें खींच के लेके जाता। केस नमूद करें हम लोग उसको रिमांड भी भेज दिए।
थैंक यू। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज शोलापुर में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को 150 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल 32 अजला का अहाता करते हुए जुमला 4000 किलोमीटर का सफर तय करने पर मुबारकबाद दी। जिनके नेतृत्व में फिर से एक बार महाराष्ट्र ने अपना गौरव पुनः प्रस्थापित किया है, ऐसे भाजपा के नेता और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे सह संगठन मंत्री श्रीमान बी सतीश जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय देशमुख जी, श्री सुभाष देशमुख जी, विजय दादा पाटिल जी, श्री गिरीश महाजन जी, संभाजी राव जी, श्री सुरेश खाड़े जी, सदाभाऊ घोष जी, जय सिद्धेश्वर महाराज यहाँ के सांसद महोदय, महाड़ा के सांसद रंजीत जी, यहाँ की महापौर श्रीमती शोभाताई और आज इस सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं शिव योगी सिद्धेश्वर महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आजादी के लिए कश्मीर घाटी में अपने जान गंवाने वाले इसी धरती के सपूत मेजर कुणाल गोसावी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूं। मित्रों, आज सोलापुर की ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर देवेंद्र जी की यात्रा के दूसरे चरण के समारोह पर मैं आया हूं, तब ये महान महाराष्ट्र की भूमि जिन्हें हमेशा स्वराज, स्वधर्म और स्वदेश की आहले जगाई, ऐसे समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज की पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूं। तिलक महाराज और वीर सावरकर को भी स्मरण करता हूं, आंबेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, मैं लोकसभा के चुनाव के बाद
पहली बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र की जनता को अपील की थी, आह्वान किया था कि देश में एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार और महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के आह्वान को आशीर्वाद में पलटकर 48 में से 41 सीट एनडीए को देकर आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और इसलिए सोलापुर की धरती पर से समग्र महाराष्ट्र की महान जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं कि आपके ही आशीर्वाद के कारण आज नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं और एक मजबूत सरकार देश को देने का काम किया। मित्रों, 2014 से लेकर 2019 तक देश में नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार चली। ये 5 साल का कालखंड महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर सुवर्ण अक्षरों से अंकित है, क्योंकि आजादी के बाद सदैव महाराष्ट्र कोई भी चीज उठाकर देख लो पहले नंबर पर रहता था। मगर 15 साल एनसीपी कांग्रेस अघाड़ी की सरकार आई, इन्होंने जो भ्रष्टाचार का कलंक की गाथा लिखी, महाराष्ट्र पीछे 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 पड़ता है। चाहे सहकारिता हो, चाहे औद्योगिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कृषि हो, चाहे साकर कारखाना का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, कपड़े का उत्पादन हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह पे महाराष्ट्र पीछे पड़ता है। मगर ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने महाराष्ट्र को फिर से गौरव दिलाकर देश के नक्शे पर नंबर 1 का स्थान दिलाया। पाकिस्तानी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने आज मालदीव में स्पीकरों की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरीश वर्धन ने इस पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि हिंदुस्तान का दाखिली मसला है। कॉन्फ्रेंस की सदारत करने वाले मालदीव के स्पीकर ने हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ ऑर्डर को कबूल करते हुए उन्हें अपना नुक्ता नजर पेश करने की इजाजत दी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मंदूब से कहा कि वो मुतनाज़ा उमूर को ज़ेर बहस न लाए। Order, and I am going to allow a point of order for the Indian Speaker. Thank you, Your Excellency. This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, sir, Excellency Speaker Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG. This should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. Thank you, Excellency. The country which indulges itself in a genocide of its own country, which became a separate country, has moral right to raise this issue here. Let me clarify, sir. No Pakistan occupied Jammu and Kashmir, which is part of India. Which is part of India. Compromised two areas. Please, there is a chair to this meeting. GB, which Pakistan had illegally occupied through armed action in 1947. Pakistan has kept the people of this region guessing on their status as a constitutional entity, the so-called AJK unit. It has been given the trappings of a country with a president, a prime minister, and a legislative and so on. But the so-called AKJ is neither a country nor a province. The Karachi Agreement of India, please stick to your point of order without going to the substance of the matter.
kilometers. strategically important for its connectivity with China. Deputy Speaker, This is not okay. This meeting is for SDG only, sir. SDG only. Nothing should be on the record. Otherwise, Human rights. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कई इलाकों का दौरा करते हुए वहां के अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनके हमरा मजलिस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें मीनार कॉलोनी, अलीनगर, जमील कॉलोनी, एराकुंटा, शाहिज और ईदगाह वादी मुस्तफ़ा वगैरह शामिल थे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी का जो एरिया है उसके मुख्तलिफ डिवीज़नों में आज दौरा किया गया। हमारी इब्तदाई मजालिस के सुदूर मतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तदाई इसमें शरीक थे अहमद साई साहब, उमर फाम साहब, दीगर लोग। यहाँ पर मीनार कॉलोनी से दौरे का आगाज़ हुआ, वहाँ से शाहिल्स गए, एराकुंटा, वादी मुस्तफ़ा, जलपल्ली ईदगाह। ये जलपल्ली ईदगाह में नक़ीब मिलत बैरिस्टर सौदरी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने 2005 में ईदगाह का संग बुनियाद रखा था। वो ईदगाह के अतराफ़ में एक बड़ी वसी अराज़ी है जहाँ पर क़ब्रिस्तान बसाया गया और इसके तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ के लोग मुतालबा करें कि हिसारबंदी के ज़रिए इस क़ब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ईदगाह का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और दीगर बस्तियों में जिसमें अली कॉलोनी भी शामिल है, वहाँ पर ड्रेनेज के पानी की मसाइल है। तमाम मसाइल को नोट किया गया। इंशाल्लाह जितना हो सके जल्द इन इलाक़ों में पहले पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जो लोग डीडियाँ भरे हैं उनको पहले पानी सरबराह करेंगे। बाकी लोगों की डीडियों को भी यहाँ पर दाखिल करवाएंगे। एरिया में काउंटर कायम करवा के ये काम करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज का काम है और SW ड्रेन का आखिरी में आते हैं रोडों का काम होगा इंशाल्लाह। ये तमाम कामों की रिपोर्ट इस दौरे की सदर मजलिस नक़ीब मिलत असदुद्दीन साहब को पेश की जाएगी और सर साहब की हिदायत पर यहाँ के आहिस्ता आहिस्ता तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। मुसलसिल इस इलाक़े की पसमानदगी को दूर करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। इंशाल्लाह उनकी सरपरस्ती में जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मसाइल को हल कराती आई है, आइंदा भी हल करते रहेंगी और यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगी। शुक्रिया। मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी का HMD नगर नाचाराम में तहनीती जलसा मुनक़िद हुआ। उन्होंने पार्लियामानी इंतखाबात में उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाने पर राय दहिंदों से ज़ाहिर तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल की यकसूई के लिए हर वक्त दस्तियाब रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने TRS की हुकूमत पर अवामी वादों को फरामोश कर देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के आमराना रवैये से अब काबीनी वज़रा भी बेजार हो चुके हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर सेहत ई राजेंदर के साथ चीफ मिनिस्टर के रवैये का भी हवाला दिया। మీ వాడిగా మీ బిడ్డగా గొంతు వినిపించాలని ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా కలవకపోయినా చాలా మందిని అడగకపోయినా మీకు మీరే బాధ్యతగా భావించి మీరు బాధ్యత తీసుకొని నన్ను గెలిపించి చట్టసభలకు పంపించడానికి నేను ఇది చాలా పెద్ద గొప్ప గౌరవం। రాజకీయాలలో ఇంటింటికి తిరిగి గడప గడప దొక్కి ప్రతి తలుపు తట్టి ఎంతో మంది కడుపులో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళకు దండం పెడితే కానీ ఎన్నికలలో నెగ్గలేని పరిస్థితుల్లో ఎంతో ఖర్చు పెట్టి వ్యయ ప్రయాసాలు పోర్చినా కూడా ఫలితాలు వస్తావో రావో అనుకునే సందర్భంలో పైసా ఖర్చు లేకుండా నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా కలవకపోయినా ఓటు అడగకపోయినా తక్కువ సమయంలో 14 రోజుల్లో 32 లక్షల మంది ఓటర్లు చైతన్యంతో కదిలి కాలనీలలో ఉన్న పెద్దలే కాదు మా ఆడపడుచు మా సోదరి వాళ్ళందరూ కూడా మన బిడ్డ గెలవాలి, గెలిస్తే మన సమస్యల మీద మాట్లాడతాడు, మనం ఎప్పుడు కావాలన్నా వెళ్ళొచ్చు కలవచ్చు, మన తరఫున నిలబడతాడు, కొట్లాడతాడు, కనబడతాడు అని చెప్పి మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ రోజులో 24 గంటలు కాదు రోజుకు ఒకవేళ 48 గంటలు నా సమయాన్ని మీకోసం కేటాయించి సమస్యల మీద పోరాటం చేసినా కూడా తక్కువనే అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళం
వివిధ వ్యాపారాలలో లేకపోతే విద్యావేత్తలుగా లేదా వివిధ రాజకీయ పార్టీల సానుభూతి పరులుగా शहर के तारीखी बालापुर गणेश उत्सव समिति के अरकान और पुलिस अहदेदारों का एक मुश्तरका इजलास आज डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें 10 रोज़ा त्यौहार के पुरअमन इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी इकदाम के तहत 16 CCTV कैमरे गणेश मंडप के अतराफ नस्ब किए जाएंगे। नीज 400 पुलिस जवानों और अहदेदारों को तैनात किया जाएगा। आज बालापुर गणेश त्यौहार जो हर साल चलता है यहाँ पे, उसके बारे में कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जैसे कि रेवेन्यू, म्यूनसिपैलिटी, पुलिस और दूसरे ऑफिसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। जहाँ यहाँ पे ये त्यौहार को पीसफुल और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे और क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में देखा गया। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं जैसे रोड का रिपेयर और लाइटिंग के समस्या और CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन, उसके सबके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई और उसमें और क्या क्या करना है। और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने भी इसमें भरोसा दिलाया है कि जल्दी ये सारी कार्रवाई भी कंप्लीट कर ली जाएगी। और वैसे ही गणेश कमेटी के मेंबर्स और यहाँ के लोकल जो बड़े लोग हैं, लोकल गांव वाले जो भी लोग हैं, सब लोगों ने भी इस त्यौहार में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करके डिपार्टमेंट को भी कोऑपरेशन देने का वायदा किया है। तो सबके मेल जोल से, सबके कोऑपरेशन से इस बारी भी ये फेस्टिवल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये हम सबको भरोसा है। तेलंगाना स्टेट टीचर्स एम्प्लॉयज यूनियन ने असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को फौरी तौर पर पूर्ण करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत ने 15 अगस्त से असातिज़ा को पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात के तहत तनख्वाहें अदा करने का वादा किया था, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में अब तक अदायगी अमल में नहीं आई। वजीफे की खदीम स्कीम पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। एसोसिएशन के सदर टी तिरुपति रेड्डी ने धमकी दी कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात की जल्द से जल्द यकसुई न करे तो रियासत भर के असातिज़ा एहतजाजी मुहिम शुरू कर देंगे। హైదరాబాద్ జిల్లా మరి ఇన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వానితో సత్సంబంధాలను ఏర్పరచుకొని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మా హామీలని నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్ని రోజులు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇప్పుడు ఉపేక్షించేది లేదు, ఎందుకంటే అన్ని సమస్యలు తీసివేసిన విద్యాశాఖలో ముఖ్యంగా ఈ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగులకు శాపంగా మారినటువంటి CPS విధానాన్ని వెంటనే రద్దుపరచాలని, ఎవరైనా CPS ఉద్యోగి చనిపోతే వాళ్ళకి ఎంత పెన్షన్ వస్తుందంటే దినసరి కూలీకి వచ్చినటువంటి వేతనం కూడా వాళ్ళకు పెన్షన్ రూపంగా రావడం లేదు। కాబట్టి CPS విధానాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలా। తర్వాత అదేవిధంగా విద్యాశాఖలో ఆఫీసర్ల పోస్టులు అన్నీ కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి, డిప్యూటీఓలు కానీ, డిప్యూటీ IASలు కానీ, తర్వాత HM పోస్టులు కానీ అన్నీ ఖాళీలు ఉన్నాయి। మరి విద్యా వ్యవస్థను పర్యవేక్షించాల్సినటువంటి పోస్టులే ఖాళీగా ఉంటే మరి విద్యా వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి భావి భారత పౌరులు ఏ విధంగా తయారవుతారు, మరి మన రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ PRCని వెంటనే ప్రకటించాలని, IRను 42% ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అంతర్జిల్లా బదిలీలను చేపట్టాలా। ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల ప్రమోషన్లను వెంటనే చేపడితే విద్యా వ్యవస్థ గాడిలో పడుతుందని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। మరి పండిత్ PET పోస్టులను అప్గ్రేడ్ చేస్తామని ఇప్పటి వరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించారు కానీ దాన్ని అమలుకు నోచుకోలేదు। కాబట్టి పండితులు PETలు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు। కాబట్టి ఆ పోస్టులను వెంటనే అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం रियासती हज कमेटी की तरफ से रवाना हुआ आज़मीन हज का पहला काफिला बाद अदायगी हज और ज़ियारत मुक़द्दसा कल रात हैदराबाद वापस हुआ। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इन हाजियों का इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस काफिले में 450 हाजी साहिबान शामिल थे। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बैगेज बेल्ट पर हाजियों की मदद के लिए 50 वॉलंटियर्स की खिदमत भी हासिल की गई थी। हाजी हजरात का काफ़िला आया है, बड़ी खुशी की बात है। इस साल हमारी तेलंगाना स्टेट से
तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हाजी भी हमारे हैदराबाद से गए थे और ये आज पहला काफ़िला वापस आया है। और हमेशा हाजियों की खिदमत करने के लिए तेलंगाना बनने के बाद से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से जो हज को जाने वाले हजरात होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम का सीएम साहब ने हमें ख़ास तौर से बुलाकर कहा कि हज कमेटी चेयरमैन साहब को, मसीहुल्लाह साहब को, कि इस मरतबा हाजियों के और अच्छे इंतजाम होना चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से मसीहुल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किया और उनकी पूरी टीम को, और हमारे शफीउल्लाह साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे हज कमेटी बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब को भी आज यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए आए। हर साल जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद हर साल दिन ब दिन बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए और हाजी हजरात जब वापस आ रहे थे कई लोगों से हमने पूछा कैसे रहे आपके इंतजाम। उन्होंने हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं ख़ास तौर से हज कमेटी चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने कहा, मेरी जानिब से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हज को जाने वाले लोग जितने भी हाजी होते हैं वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह का बुलावा आता है और अपने फ़राइज़ अदा करके हम अल्लाह से यही दुआ करें अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।